Good morning students. Today we are going to start new chapter practical geometry. In this chapter we will study how to construct a quadrilateral under given informations. First of all, let me recall you all that a polygon which has four sides called a quadrilateral. A quadrilateral has four sides. Obviously, it has four sides and two diagonals. Diagonals are line segments which joins opposite vertices of the quadrilateral. Thus, there are two diagonals in a quadrilateral. We know different types of quadrilateral. For example, rectangle, square, trapezium, parallelogram, rhombus, kite, and a general quadrilateral. Here, think, discuss, and write. Arshad has 5 measurements of quadrilateral ABCD. These are AB equal to 5 cm, angle A equal to 50 degree, AC is equal to 4 cm, BD is equal to 5 cm, and AD is equal to 6 cm. Can he construct a unique quadrilateral? Give reasons for your answer. Now we are going to discuss the given informations which will be given to construct a unique quadrilateral. Constructing a quadrilateral. We shall learn how to construct a unique quadrilateral given the following measurements. When four sides and one diagonal are given. When two diagonals and three sides are given. When two adjacent sides and three angles are given. When three sides and two included angles are given. When other special properties are known. So, we are going to discuss first when four sides and one diagonal are given. See the article 4.2.1. When the lengths of four sides and a diagonal are given. Here we will be given all the four sides and a diagonal of a quadrilateral, and we will have to construct that. We will construct the quadrilateral under this condition with the given example. Construct a quadrilateral PQRS where PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 6 cm, RS is equal to 5 cm, PS is equal to 5.5 cm, and PR is equal to 7 cm. Okay, so see here PQRS, grouping of two consecutive letters. दो की ग्रुपिंग कर लीजिए consecutive letters की, उससे साइड्स बनती है. कौन सी साइड्स बनती हैं? अपोजिट साइड्स से. पहला ग्रुप PQ, दूसरा ग्रुप RS, ये दोनों अपोजिट साइड्स होंगे. ऐसे ही हम PQ लिए, बीच वाले मिडल वाले दो और एक्सटीरियर वाले दो PS और QR, इनसे भी अपोजिट साइड्स बनेंगे. राइट, एक लेटर को छोड़ दो, अल्टरनेट लेटर्स लीजिए. PR डायगोनल होगा, QS डायगोनल होगा, देख सकते हैं. अब हमें फोर साइड्स और वन डायगोनल आर्ग्यूमेंट हमको दिया गया है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है. आइए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग डायगोनल को ड्रा कीजिएगा. ड्रा द डायगोनल PR इज इक्वल टू 7 cm. पहला स्टेप है, आप डायगोनल को ड्रा कर लो.
राइट। डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद उसका नाम लिख दो, जो डायगोनल का नाम है पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि पी लेटर के साथ और कौन सा लेटर जुड़ा हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन में। पी के साथ कौन सा लेटर और क्यू के साथ कौन सा लेटर गिवन है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए पी के साथ है पी क्यू, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो पी को सेंटर लीजिए और पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पी को सेंटर, पी क्यू और पी को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस लीजिए और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये आर्क है, ये आर्क हमारा है। पी को सेंटर लिया, 4 सेंटीमीटर रेडियस लिया, राउंडर की हेल्प से राउंडर का पॉइंटर यहाँ रखिए और 4 सेंटीमीटर रेडियस पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आर को सेंटर लीजिए, आर क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। देखिए आर क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आर को सेंटर लीजिए और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के दूसरा आर्क ड्रा कीजिए। देखिए ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर कट किए, यही पॉइंट है क्यू। यही पॉइंट क्यू है जिसकी डिस्टेंस P से 4 सेंटीमीटर है और R से 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, फिर देखेंगे P के साथ और कौन सी इंफॉर्मेशन है, R के साथ कौन सी साइड गिवन है। तो P के साथ गिवन है, देखिए PS इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। P को सेंटर लीजिए, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, देखिए P को सेंटर लिया, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, अब R को सेंटर लेंगे और QR इक्वल टू R को सेंटर लेंगे और RS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए, R को सेंटर लिया और RS इक्वल टू R को सेंटर लेकर RS इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेडियस से दूसरा आर्क ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क्स, जो पिछला आर्क था ये P को सेंटर लेकर ड्रॉ किया गया आर्क है और ये R को सेंटर लेकर ड्रॉ किया गया आर्क है। दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, यही पॉइंट है S, इसको हम लिखेंगे S। देखिए आगे देखिए, इसको लिख दिया नाम S। P से S को ज्वाइन किया, R से S को ज्वाइन किया। अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है P Q R S such that PQ is equal to 4 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, PS is equal to 5.5 centimeter, RS is equal to 5 centimeter। हमसे एक गलती हुई, सॉरी, हमने कहा था R को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर रेडियस, नहीं, R को सेंटर लेकर के RS is equal to 5 सेंटीमीटर रेडियस। देखिए क्वेश्चन में गिवन है RS is equal to 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के जब हमने ड्रॉ किया था तो हमने पाया कि दोनों आर्क एक पॉइंट पर कट किए, वो पॉइंट है S। P से S को ज्वाइन कर दिया, S से R को ज्वाइन कर दिया और हमारा क्वाड्रिलेटरल PQ R S कंप्लीट हो गया। इस तरह से है कि PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप डायगोनल को ही ड्रॉ करोगे। डायगोनल को ड्रॉ करके उसके जो वर्सेस होंगे उनको लिख देना, जैसे PR था, PR लिख करके P सेंटर लेकर के PQ 4 सेंटीमीटर का रेडियस का आर्क ड्रॉ किया था, R सेंटर लेकर के 6 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ड्रॉ किया था। दोनों कट किए थे एक पॉइंट पर, उसका कोऑर्डिनेट था Q, क्योंकि वो पॉइंट था Q। क्यों? क्योंकि P से Q की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और R से Q की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर।
फिर पी को सेंटर लेकर के 5.5 सेंटीमीटर रेडियस से एक आर्क ड्रॉ किया था और आर को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर रेडियस से दूसरा आर्क ड्रॉ किया था। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट किए वो पॉइंट था एस, और पी से एस को ज्वाइन कर दिया और पी से आर से एस को ज्वाइन कर दिया और हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। यही हमारा था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। अब हम इसको अपने नोट से डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा नोट भी देख लीजिएगा। आप लोगों को इसके बाद एक्सरसाइज 4.1, इसमें एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, मैंने बता भी दिया। इसमें बी एस एक लेटर को छोड़ देंगे तो डायगोनल आ जाता है। जब नाम न दिया हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा डायगोनल क्या है। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। जस्ट मिनट। सारी प्रॉपर्टीज देखिए। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल on the basis of following conditions we can construct a unique quadrilateral. First, when 4 sides and 1 diagonal are given, when 2 diagonals and 3 sides are given, when 2 adjacent sides and 3 angles are given, when 3 sides and 2 included angles are given, when other special properties are known. रिमार्क था, हमने बता दिया था, इसको आप लिख लेना। ABCD में AB, BC, BC, CD, CD, DA एंड DA, AB, इनको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। ये पेयरिंग है। एंगल A, एंगल B, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल B, एंगल C, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल C, एंगल D, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल D, एंगल A, एडजेसेंट एंगल्स। AB, CD पेयरिंग कर दीजिए। AB पहले दो का, लास्ट दो का, वो हो गया अपोजिट साइड्स, राइट। और दूसरे तीसरे का, मिडल 2 का और आउटर 2 का ग्रुपिंग करेंगे तो उससे अपोजिट साइड्स मिलते हैं। ओके, जैसे हमारा ABBC, फिर BCAD। अब when the lengths of 4 sides are and 1 diagonal are given, एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल जो हमने अभी डिस्कस किया। हम यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पूरा लिखा हुआ है। ड्रॉ द डायगोनल PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहले डायगोनल। P को सेंटर लो और रेडियस PS इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ करो। फिर R को सेंटर लो और रेडियस RS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेकर दूसरा आर्क ड्रॉ करो। दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा S। ज्वाइन कर दो R से S और RS को और PS को ज्वाइन कर दो। फिर P को सेंटर लो और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेकर के आर्क ड्रॉ करो। फिर R को सेंटर लेकर और रेडियस RQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दूसरा आर्क ड्रॉ करो। दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट Q होगा। ज्वाइन कर दो PQ और QR को। इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS कंस्ट्रक्ट हो जाता है। आपके सामने ये डायग्राम है, देखिए। पहले PR ज्वाइन ड्रॉ कर लिया, P को सेंटर लिया, PS इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एक आर्क ड्रॉ किया। फिर R को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर रेडियस से दूसरा आर्क ड्रॉ किया। जहां कट किए उसको पॉइंट S कर दिया और P से S, R से S को ज्वाइन कर दिया। फिर P को सेंटर लेकर के PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रेडियस से एक आर्क ड्रॉ किया। R को सेंटर लेकर RQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दूसरा आर्क ड्रॉ किया। जहां कट किए उसको पॉइंट Q किया। P से Q को ज्वाइन कर दिया, Q से R को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है PQRS, जिसमें गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही क्वाड्रिलेटरल बना है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। स्टूडेंट्स, अब आपको एक्सरसाइज 4.1 होमवर्क है, उसको खुद से कीजिए। याद रखिएगा, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।